So, this is the article regarding how social media campaigns have shaped 2024 Lok Sabha elections. So, this is a kind of survey done by Lokniti CSDS, which has focused on कि कैसे सोशल मीडिया ने आपके जो लोकसभा इलेक्शंस को है उनको शेप किया है. और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट शेपिंग द इलेक्शंस ओनली दिस टाइम. It is a kind of repeated theme in these days, in the modern days, where we have huge influence of social media. So we will talk about this, but before that, let us understand one thing. See, for the governance of the country, you need a leader, right? You need a leader, and that leader, like many people have aspirations to become a leader, right? They aspire to become a leader, and when they do aspire that, they have to do certain things, right? They have to gather huge mass, they have to gather huge support so that they can rise up in that ladder and they can become a leader. Nobody becomes a leader on their own self. There is support of huge population. For example, whichever party today you support, you are supporting them. That's why they are existing there only. If they do not do their work, if they do not do your work, then it's of no use. Then you can throw them away, right? So it is your right. So it is, the power lies with you, right? So here also, as I said, let's come to the point that leader needs support of mass. They have to mobilize people, right? And for that mobilization, what they do, they try to influence you. They try to influence the people, influence the citizen of their country to support them in numerous number of ways. In numerous ways, whether it be slogans, whether it be propagandizing or whatnot, criticizing criticizing each other, right? So they always do that. And it's not something which is happening for the very first time. It has been happening since long. अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे, एग्जाम्पल हम कोई सा भी ले सकते हैं, बट आई विल टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ हिटलर. आप देखोगे, आपने देखा कि किस तरीके से ही बिकेम अथॉरिटेरियन एंड किस तरीके से ही उन्होंने रेसिस्ट पॉलिसीज़ अपनाई ज्यूज़ के अगेंस्ट. इस तरीके की रेसिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से ह्यूज नंबर ऑफ किलिंग्स हैपेंड एंड व्हाट नॉट, राइट? But still, how he was able to gather that much of support? So basically, आप देखोगे आफ्टर 1919 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ, द इकोनॉमी वॉज सफरिंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस. देयर वॉज इकोनॉमिक क्राइसिस, नो एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ demographic changed, and because of that there was female-male ratio गड़बड़ा गया था. So male population was less to work, and so there was lot of economic issues happening. उनके पास पैसे नहीं थे, they were dependent on US. So US debt बढ़ गया था US पे, like they have to ask for US to help. So these all were the things happening. तो अब आप जानते हो, when crisis happens, there emerges a leader. When crisis happens, people look for some kind of leader who can help them to come out of this situation, and who can make their country self-sufficient again, and great again. So he was Hitler. Hitler was the one who came up at that time. There was Socialist Democratic Party existing, left-wing Socialist Democratic Party, but he criticized that party for signing Treaty of Versailles. He said that they have by signing this treaty, he called that party as November criminals. कि इन्होंने ये जो Treaty of Versailles साइन किया है, ये इन्हें नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये हमारी जो रिस्पेक्ट है उसके अगेंस्ट था, राइट? आपको पता होगा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी, तो उन्होंने उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा. तो दिस इज़ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडाइजिंग, व्हाट एल्स. देन ही ऑल्सो यूज्ड काइंड ऑफ स्लोगन्स दैट स्टैब इन द बैक. उन्होंने कहा कि इस तरीके की ट्रीटी साइन करके इन्होंने हमें धोखा दिया है. सो इट इज़ स्टैब इन द बैक. तो इस तरीके की चीज़ें भी चली.
ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब प्रोपेगेंडाइजिंग हो रही है। दे आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर देयर ओन सपोर्ट, देयर ओन एडवांटेज, राइट। ही यूज द फ्रेज मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, राइट, मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। आज आप देखोगे यही यूज़ होता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट। तो वही चीज़ें, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वही चीज़ें अगेन एंड अगेन हो रही हैं। इसके अलावा पार्टीज़ अपने गोल्स बता के, एम बता के, उन्हें पॉपुलराइज़ करके कि हम आपके लिए ये करेंगे, क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं ना लोगों को। जैसे कि हिटलर ने किया, हिटलर ने क्या कहा, दैट वी प्रॉमिस टू मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसिसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वी विल रिस्टोर द नेशनल प्राइड। अब आपको पता है उस टाइम पे बिल्कुल नेशनल प्राइड एट लोएस्ट लेवल था, क्योंकि इतनी ह्यूमिलिएटिव ट्रीटी उन्हें साइन करनी पड़ी थी जर्मनी को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 में हार के बाद। तो इट वाज ऑल हैपनिंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा हम रिस्टोर करेंगे हमारे नेशनल प्राइड को। तो लोग तो डेफिनेटली नेशनलाइज, मतलब एक नेशन से जैसे आप लोगों को अटैच कर देते हो, तो वो एक बहुत ही इमोटिव चीज़ हो जाती है। और आपको पता है हिटलर वाज रियली लाइक ही वाज इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट। तो इमोशंस को भी आपको पता है कि पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। और इमोशंस आर ओनली बीइंग कमोडिफाइड। आपके इमोशंस के कमोडिफिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं होंगी इन चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि नथिंग इज़ राइट हैपनिंग, डेफिनेटली some things are there which are really important and really make sense, but there is a huge role of emotions here. Then उसके अलावा तो वेरियस काइंड ऑफ ऐसी ही चीज़ें होती रही। तो वही चीज़ें, जैसे कि वही इन्फ्लुएंस, वही टाइप की चीज़ें अगर आप देखोगे आज भी हो रही हैं। और वही इस आर्टिकल में भी बेसिकली अगर हम मोटा मोटा देखें तो यही है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बात की है। अब देखो, दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे कैंपेन सॉन्ग्स का इंक्रीज लेवल पे यूज़ हुआ है, इंक्रीजिंगली वाइटल टूल्स फॉर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के रूप में आए हैं आपके कैंपेन सॉन्ग्स। कैची एंड एक्सेसिबल मीडियम टू एम्पलीफाई कैंडिडेट्स मैसेजेस एंड मोबिलाइज वोटर्स। एज आई सेड, मोबिलाइजेशन होता है मासेस का, वही हो रहा है, राइट। देन ये स्टडी ने एनालाइज किया है 150 यूट्यूब कैंपेन सॉन्ग्स को, जिसमें से 80 आर सपोर्टिंग कांग्रेस, 70 सपोर्टिंग बीजेपी। देन सॉन्ग्स व चूजन थ्रू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ किया गया है। सो ये सब की क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है। देन देर आर वेरियस सॉन्ग्स विच वर सोर्स्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट चैनल्स विद फ्यूअर अपलोड्स फ्रॉम ऑफिशियल पार्टी का जो अपलोड्स है वो कम है सॉन्ग्स के रिस्पेक्ट में। इंस्टेड यहाँ पे जो शेयर है वो इंडिपेंडेंट चैनल्स का ज़्यादा है सॉन्ग्स प्रमोशन में, राइट। देन देखो, बीजेपी सॉन्ग सेंटर्ड अराउंड, हमने कहा वो एक पर्सनालिटी कल्ट, जैसा कि हमने कहा था कि हिटलर के केस में वो क्या हो रहा था, पर्सनालिटी कल्ट ही तो हो रहा था। हिटलर को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था कि देखो हिटलर क्या थी तो क्या नहीं हो गया, हिटलर ये कर देगा, हिटलर वो कर देगा, बट एट द एंड व्हाट हैपेंड, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक एक पर्सनालिटी फोकस की जाती है। जैसे कि बीजेपी सॉन्ग्स में देखो लीडर पे फोकस किया जा रहा है, पीएम मोदी पे फोकस किया गया, विच प्रोजेक्टेड ट्रस्ट एंड कॉन्टीन्यूटी। देन रिलीजियस रेफरेंसेस लाइक राम टेम्पल, सैफरॉन, दिस टाइप ऑफ रिलीजियस चीज़ों का भी यूज़ किया गया, ठीक है। देन आप देखोगे नेशनल थीम्स वर ऑल्सो प्रोमिनेंट, नेशनल थीम्स लाइक भारत माता, कश्मीर, एनिमी। अब ये क्या है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का है, आपके इमोशंस को यूज़ किया जा रहा है कि यार हाँ लोग रिलेट करते हैं कश्मीर से, लोग रिलेट करते हैं भारत माता से, तो वही किया जा रहा है और किया गया है। आपके बेसिक इवन आप देखोगे जो प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स है, इट इज़ नॉट कि ये प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर रीजन में प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें एक तरीके से सेंटर्ड अराउंड वहाँ कर दिया जाता है जहाँ हमारा ज़्यादा मे बी अगर हम कहें ग्रोथ के सेंस में, इट इज़ नॉट कि ग्रोथ से वहीं से होगी, बट दैट इज़ अ पार्ट, बट हमारा पूरा फोकस ही एक जगह कर दिया जाता है। देन यू सी देयर अपीयर्ड वर्ड्स लाइक गारंटी, फार्मर, पुअर, वाइल विक्ट्री एंड वेव ऑल्सो कन्वेड। देन आप देखोगे कांग्रेस के सॉन्ग्स में दे हाईलाइटेड लीडरशिप थ्रू फ्रीक्वेंट मेंशंस लाइक गांधी, राहुल, प्रियंका, एंड देयर वर कोर थीम्स जैसे कि जस्टिस, राइट्स, systematic change, signaling focus on equity. Then there were hope and save country kind of things. तो इस तरीके की चीज़ें आपके ऑपोजिशन ने यूज़ की।
देन सॉन्ग्स देखो, बीजेपी के सॉन्ग्स, मोदी है तो मुमकिन है, या स्लोगन्स, नॉट ओनली सॉन्ग्स, स्लोगन्स लाइक मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, आएगा तो मोदी ही, दिस काइंड ऑफ स्लोगन्स हैव बीन यूज्ड। वहीं पे कांग्रेस की तरफ से देश की धड़कन राहुल, नेहरू सी सोच है, सो उनको एक मॉडर्न विजनरी की फॉर्म में, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीडर्स, they are trying to represent their leaders in the best manner so that they can avail most number of votes, right? तो बस वही हो रहा है, mobilization of masses is happening। यहाँ पे आप देखोगे नेशनलाइजेशन, इस टाइप की चीज़ों से आप क्या बोलोगे, नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वही हो रहा है, लोगों के सेंटिमेंट्स को नेशनलाइज करके उनको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। देन ये रहा देखो, इमोशनल अपील्स का यूज़ करना, लाइक इंदिरा राजीव ने जान गंवाई लॉयल्टी एंड कंटिन्यूटी के लिए। देन क्रिटिकल स्लोगन्स का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि लोकतंत्र के भेड़िए, झूठों से देश बचाना है, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक, राइट। फिर वहीं पे रिलीजियस कॉनोटेशंस का यूज़ किया है, दे वर प्रोमिनेंट इन बीजेपी सॉन्ग्स में 72% रिलीजियस कॉनोटेशंस का यूज़ हुआ है, हिंदू नेशनलिस्ट थीम्स का यूज़ हुआ है, जय श्री राम। आप देखो आधे से ज़्यादा काम तो रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है ना। ओनली 10% कांग्रेस सॉन्ग्स कंटेन रिलीजियस थीम्स रिफ्लेक्टिंग मोर प्लूरलिस्टिक कम्युनिकेशन स्टाइल यहाँ पे देखने को मिला। वाइल बीजेपी's रिलीजियस मैसेजिंग वॉज लार्जली रिटोरिकल, कांग्रेस लीन मोर ऑन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देन देर आर वन जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैंपेनर्स, उनके रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि इनका भी जो इन्फ्लुएंस है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इनका इंक्रीज़ हुआ है। एडवर्टीज़मेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा, तो एडवर्टीज़मेंट में भी इनका जो शेयर है वो बढ़ा है। फोकस ऑन डिजिटल कैंपेनिंग बाय थर्ड पार्टी। दैन टॉप 50 जो है स्पेंडर्स ऑन मेटा, वो आपके उनमें से 31 जो हैं वो थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स ही हैं 50 में से, आप सोचो, तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी का। दैन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ दीज थर्ड पार्टी कैंपेन्स के जो एक्सपेंडिचर है, दे रेंज फ्रॉम $0.6 million to 73 million ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। ये जो स्टडी पीरियड रहा है 2024 वाले के लिए, वहाँ पे देन आप देखोगे कैची प्रोवोकेटिव नेम्स का उन्होंने यूज़ किया, जैसे कि महागठबंधन की जगह महाठगबंधन। देन दे हैव यूज्ड हिरक रानी बाई बाय, तो इसमें ममता बनर्जी को एज अ डिक्टेटर, सो दूसरों को डाउन दिखा के अपने आप को ऊपर दिखाने वाली चीज़ें भी यूज़ की गई हैं। देन DMK एंड कांग्रेस हैव बीन फाउंड फंडिंग थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स को ये फंड करते हुए भी देखा गया है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी so they have been able to circumvent the expenditure limits, okay। then there is lack of detailed funding information in the meta, so उसकी वजह से भी accountability affect होती है। फिर आप देखोगे यहाँ पे, हाँ, सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर, जैसा कि मैंने कहा, पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग, व्यूज़, पीपल आर, इवन पीपल, हमारी तरफ से हम देखें, हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं, तो उसके फॉर्म में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट वो बन गया है प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस योर व्यूज़। देवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में भी दे हैव कैटेगराइज 2 काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। एक क्रिटिकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि गवर्नमेंट के क्रिटिक में है, जो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, जबकि एक सपोर्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा एक ग्रुप बना हुआ है अलग अलग। आप देखोगे कि कुछ जो होते हैं सोशल मीडिया चैनल्स होंगे इंडिपेंडेंट ही हैं, बट कुछ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कुछ हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो वही डिवीज़न यहाँ पर है। आप इवन शायद किसी कईयों को फॉलो भी करते होगे उनमें से। तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, वो अपने व्यूज़ बता रहे हैं और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं टू अपनी तरफ, और टू से अपनी मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पार्टी, बट येस दे आर इन जनरल क्रिटिसाइजिंग, और मे बी नॉट, आप ये नहीं कहोगे कि वो जान के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट हाँ, वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी नॉलेज, अपना वट एवर दे हैव द नॉलेज, दे आर ट्राइंग टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, और उससे आपका इन्फ्लुएंस तो हो ही रहा है। आपका कभी कभी ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कुछ चीज़ें रखी हैं, वो हो गया एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, राइट। वो आपको सही चीज़ें बता के, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके आपको बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द राइट थिंग एंड वेयर यू शुड अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, एंड ओनली देन आपको एक इन्फॉर्म्ड वोटर होना चाहिए। वहीं पे कुछ कंटेंट होगा जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन द नेगेटिव सेंस, दे आर जस्ट
बस यूं ही पर्सनालिटी कल्ट के बेसिस पे या कुछ सॉन्ग स्लोगन्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। दिस डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो वही चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे ये डिवीज़न किया गया, फिर देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज अमid दैट। अब इसमें आप देखो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, कहाँ गई? हाँ, ये देखो, ये कुछ इन्होंने नाम दिए हैं, जैसे कि जो क्रिटिकल चैनल्स हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, है ना। ये रहे आपका, ये नीचे इसमें देखो, इसमें तो आप जानते भी होंगे, ध्रुव राठी है, देशभक्त है, रवीश कुमार है, कुणाल कामरा। सो दीज ये क्रिटिकल सपोर्टर्स हैं, क्रिटिकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। देन यहाँ पे भी कुछ हैं, ये मेघनाड। फिर आपके सपोर्टिव में आपके देखो एल्विश यादव हैं, साईं दीपक हैं, आपने इनको देखा होगा साईं दीपक को, तो कई बार राज्यसभा डिबेट्स में ये आपको देखने को मिलता है। पहले तो हमें काफ़ी मिलते थे, अभी भी आई थिंक आते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। तो वही है कि किस तरीके से ये चैनल्स आपको सब इन्फ्लुएंस करें। देखते फिर ये देखो, डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस कॉनोटेशंस, इन्होंने बताया रिलीजियस कॉनोटेशंस का परसेंटेज कहाँ कितना रहा है। तो बीजेपी में आपका 72%, आईएनसी में 10%, तो ये यस के फॉर्म में है, ठीक है। फिर ऐसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीडियोस, तो इन्होंने बोला रिलीजियस मोटिव्स का यूज़ किसने कहाँ कितना किया है। तो अगर आप देखोगे टेम्पल और रिलीजियस बिल्डिंग्स, तो आईएनसी ने 43% यूज़ किया है, जबकि स्लोगन स्टैंड्स वगैरह में देखोगे तो ये बीजेपी ने 15% किया है, जबकि ये जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, यहाँ पे लेस देन 0% है। दैन प्रीस्ट रिलीजियस सिम्बल्स, और टू से मतलब डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स का यूज़ जो है वो आपका कांग्रेस ने 30% तक किया है, जबकि डाइवर्सिटी ऑफ दिस प्रीस्ट एंड ऑल में बीजेपी का 11% है। सो इस तरीके से कुछ डेटा है। फिर यहाँ पे ये देखो, क्रिटिकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो थीम है वो क्या है मेजरली, इनका है या तो लीडर्स पे सपोर्ट है, आई मीन लीडर्स पे बेस्ड है, या फिर इलेक्शंस पे बेस्ड है, या फिर कुछ कंट्रोवर्सीज। वहीं पे सपोर्टिव जो हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनका थीम रहता है, इनका भी मेजॉरिटी लीडर ही है। सो लीडर वाले में देखो कितना इंपॉर्टेंस है। तो लीडर मतलब ये जो पर्सनालिटी कल्ट है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये लीडर को ग्लोरीफाई करने की, आप देखोगे हिटलर को भी क्या किया गया, ग्लोरीफिकेशन ही तो हुआ, उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। वैसे यहाँ पे ग्लोरीफिकेशन है। इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि Hitler was authoritarian, but it is not the case with our country. Here we are a democratic country, right? So don't compare in that sense. I'm just giving example to वो दिमाग में आया तो मैंने वो दे दिया, it's just that. बट देखो लीडर का रोल चाहे कुछ भी हो, चाहे अथॉरिटेरियन हो, ऑटोक्रेटिक हो, या फिर डेमोक्रेटिक हो, दैट इज़ हमारी कंट्री। वहीं पे भी, यहाँ पे भी लीडर्स का ही फोकस, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। देन इनका इंडिया अलायंस पे सेकंड जो है फोकस है, और फिर हिंदू मुस्लिम इनका थर्ड फोकस रहता है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यही सब है। फिर देखो ये हमने बात की थी, इस टाइप के स्लोगन्स का यूज़ करना। अब आया है रामराज, यहाँ कांग्रेस का देश की धड़कन राहुल, हर बहन का भाई राहुल, भारत की तकदीर राहुल। सो दिस काइंड ऑफ स्लोगन्स हैव बीन यूज्ड टू मोबिलाइज लार्ज पॉपुलेशन। सो यही है बस कि किस तरीके से सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ मेजर टूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन टूडेज like politics, Indian politics, and people are too much getting influenced because of it. Like तो यही इन्होंने बताया 2024 में लोकसभा इलेक्शंस underscored a significant evolution in India's digital campaigning, bringing both sophistication and new challenges to electoral transparency. आप देखोगे इसमें कौन किसको फंड कर रहा है, कहाँ कैसा फंड कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता। वो जो कैपिंग लगाई गई है ना पार्टीज़ पे कि आप इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हो, वो कैपिंग की ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाती है। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो वो इश्यूज़ यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलते हैं। तो यही सब है। और तो यहाँ पे ये आर्टिकल कह भी रहा है दैट विदाउट अर्जेंट रिफॉर्म्स टू एड्रेस रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी and evolving role of third party actors, the integrity of India's electoral system could be compromised. तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म पे, इस सिस्टम में भी। इट्स एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स दैट एड्रेस द चैलेंजेस इम्पोज्ड बाय डिजिटाइज्ड इलेक्टोरल एनवायरनमेंट।
सो दिस इज़ इट। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो, you can subscribe it for more such videos. Thank you so much. और एक और चीज़ कि if I am telling you all this, like there is influence in every kind of thing. This is, if I am telling you something, though I am not influencing in direct manner, but किसी ना किसी चीज़ का एक indirect influence होता ही है. So it is also influence. तो आपको बस ये, अगर आप अवेयरनेस में रहोगे कि कौन सही इन्फ्लुएंस हमें कर रहा है, कौन who is not influencing us in a negative manner, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक रियल इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे इंस्टेड ऑफ जस्ट इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन, राइट? So thank you so much for